Hi guys, this is lecture number 7. In this lecture again I am going to solve a problem, but before going to solve the problem I am going to discuss about the important parameter of the gear, that is module of the gear. Module of the gear it can be defined as it is the ratio of pitch circle diameter of the gear to the number of teeth on that gear. So here we know that every gear is having pitch circle, and every gear is also having number of teeth on that. So what is pitch circle we have already discussed in the previous videos. So if I take this circle as the pitch circle of any gear, and if D is the diameter of the if D is the diameter of that pitch circle, then number of teeth of that gear, if I take it as T, then the ratio of this diameter to the number of teeth is called as module. Once again I'll explain. The ratio of the diameter of the pitch circle of the gear to the number of teeth on that gear. So that is nothing but the module. Okay, so here in general this module can be written like this: module is equal to diameter of the pitch circle of the gear to the number of teeth on that gear. So now here I want to write this module in terms of radius. So how can I write? Here I will show you. M is equal to, module is equal to, instead of writing diameter, I can write 2 times of radius of that pitch circle divided by T. So if I take radius of the pitch circle as R, okay, so from this end to this end, the radius if I take as R, okay, and again from this end to this end will be the same distance, that is radius, that is R. Okay, so the total diameter I can write it as 2 times of R. So that only I have written here. Instead of writing diameter, I have written as 2 times of radius. So now I can write this equation in terms of radius like this: R is equal to, just I am rearranging the terms here, mt by 2. So this is what the radius of pitch circle of the gear. So if you want to express the pitch circle of the if you want to express the module in terms of radius of pitch circle of the gear, then you can express the module in terms of radius like this. Okay, that is mt by 2. So you have to remember this formula of radius, because we are going to use this condition or this formula while solving the problem. Okay, so now I will take a problem here. Now I will read out the given problem. In a reverted epicyclic gear train. Reverted gear train means what? I have explained what is reverted gear train in the previous videos. Reverted gear train is nothing but the axis of first gear and the axis of last gear are coaxial, means the axis of first gear and last gear are same. That is nothing but reverted gear train. Here they have taken a reverted epicyclic gear train. This is what reverted epicyclic gear train. If gear B is the first gear, then gear C is the last gear here, and the axis of gear B and axis of gear C are same. For that reason, this arrangement we call as a reverted epicyclic gear train. And here the arm A carries the gears B and C and compound gear DE. So here this is arm A, and this arm A carries gear B and gear C, and also the compound gears D and E. Compound gears means the gears which are mounted on the same shaft. Here gear D and E are mounted on the same shaft at this point. For that reason, these two gears D and E are called as compound gears. Next, the gear B meshes with gear E. So here this gear B is meshing with gear E here at this point. Next, gear C meshes with gear D. Gear C is meshing with gear D at this point. Okay,
So next, number of teeth on gears B, C and D are 75, 30 and 90 respectively. So, gear B is here the gear B is having number of teeth as 75, C is having 30 and D is having 90. Next, find the speed and direction of gear C when the gear B is fixed. So here we have to find out the speed and the direction, whether it is rotating in clockwise or anti-clockwise, that is nothing but direction. We have to find out the speed and direction of gear C when the gear B is fixed. When the gear is fixed. So here they have given the condition as gear B is fixed, means gear B is fixed means its speed is 0. You have to take NB is equal to 0, and arm A makes 100 RPM clockwise, and also they have given one more condition that arm A makes 100 RPM clockwise. So this arm A is rotating with a speed of 100 RPM in the clockwise direction. Then you have to take NA as NA is equal to minus 100 RPM. Why minus 100 RPM? Means it is rotating in clockwise. So now I will write down the given data here. For that I will read out the question again to write the given data. In a reverted epicyclic gear train, the arm A carries the gears B and C and the compound gear DE. The gear B meshes with gear E and gear C meshes with gear D. Number of teeth on gears B, C and D are 75, 30 and 90 respectively. So here I will write given TB is equal to 75 because number of teeth on gear B is 75. TC is equal to 30 because on gear C the number of teeth are 30. TD is equal to 90, so that is number of teeth of gear D. So here number of teeth of gear E is not given in the question, so that also you have to find out. Next find the speed and direction of C when the gear B is fixed. So here you have to find out the speed and direction of gear C when the gear B is fixed. When the gear B is fixed means NB is equal to 0. You have to take NB is equal to 0. And arm A makes 100 RPM clockwise. Then NA is equal to N arm, or you can take NA is equal to minus 100 RPM. Why it is minus? Means it is rotating in clockwise. Okay. So this is what given. So now you have to find out the speed of gear C. So now first here we have to find out the number of teeth of gear E, which is not given in the question. So to find out this number of teeth on gear E, so we have to use the make of this diagram. Whenever in the problem or in the question, when the number of teeth are not given of any one of the gear, then you have to find the number of teeth of that gear first. To find the number of teeth of that gear, so here I am going to use this formula, R is equal to MT by 2. How I am going to use that formula? Here you can see. So here to find out the number of teeth of gear E, I am using this diagram. So how I am using this diagram means by means of radius. So here you can see that from this point to this point, this distance I can write in terms of radius as from this end to this end, it is the radius of gear B. From this end to this end, it is the radius of gear B, that is RB. Okay, and from this end to this end, it is the radius of gear E. From this end to this end, it is the radius of gear E. Now I can write from this point to this point, the total distance I can write RB plus RE. So that only I have written here, RB plus RE. Okay, the distance from this end to this end. And also this distance from this end to this end, I can also write this distance like this. From this end to this end, it is
R C from this end to this end. It is the radius of gear C from this end to this end. And next, from this end to this end, it is the radius of gear D. So that is from this end to this end, it is the radius of gear D, RD. And from this end to this end, it is the radius of gear C. So I can write the distance from this end to this end as RC plus RD. So here that only I have written here, RC plus RD. But here when you add RB plus RE, so you will get this distance. And also when you add RC plus RD, you also get the same distance. For that reason I can equate RB plus RE, that is equal to RC plus RD. When you add these two radius, that will be equal to the when you add these two radius, so that will be equal to the addition of these two radius. You can refer the diagram for this. Okay, so now I am going to replace this radius term. I am going to replace this radius term by means of that module and number of teeth. I am going to replace this radius terms by means of module and number of teeth. So instead of writing this radius, as I shown in the beginning of this problem, instead of writing radius, I will write this mt by 2. So here RB is equal to I can write mtb by 2. Are you getting my point? Radius is equal to mt by 2 by this formula. By this formula, radius is equal to mt by 2. This I am substituting here for this radius. mtb by 2 because it is the radius of gear B. mte by 2, it is the radius of gear E. For that reason I have taken as te here. Okay, that is equal to mtc by 2. Instead of writing mt by 2, here I have written tc because it is the radius of gear C. Next, mtd by 2. So this is the radius of gear D. For that reason mtd by 2. Okay, so here I have written how it has written here. This also you can refer. Okay, so now actually every gear is having different module, but in the question they have not mentioned about the values of module here. For that reason we will assume that module of all the gears as same. So here now from this equation I am taking m by 2 as common at in the LHS, that is m by 2, that is into the bracket TB plus TE. So that is equal to, again on the right hand side also I will take m by 2 as common, so that is TC plus TD. Okay, so here m by 2 will get cancelled from both the sides. Okay, so what is left here? TB plus TE is equal to TC plus TD. So now substitute the value of TB, TC and TD, you will get the value of TE. So here TB is equal to 75. Okay, TE as it is because it is not given. Next 30 is the number of teeth of gear C, and number of teeth of gear D is 90. So when you substitute for all these, you will get the value of T is equal to 45. So this is what the number of teeth on gear E. Now to find out the speed of gear C, speed and direction of gear C, again we have to prepare a tabular column. So here, while preparing this tabular column, you should not consider the given data as I explained in the previous problems. So now first serial number, condition of motion, and next revolution of elements. So here you have to see how many parts are there. So for those number of parts you have to make the सब कॉलम्स इन द रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पे जितने पार्ट्स हैं उतने सब कॉलम्स बनाना है रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स में. यहाँ पे देखो गियर बी 1, गियर सी 2, ई 3,
डी 4 और आर्म 5, और यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए, मतलब 5 पार्ट्स हो गए। बट यहाँ पे वन मोर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन हियर, gear E and D since they are compound gears, so here both the gears you have to write in a single column। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, गियर D एंड E ये कंपाउंड गियर्स है नहीं, तो ये दोनों गियर्स को हम एक ही पार्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक ही पार्ट मतलब ये दोनों को एक ही कॉलम में लिखना है, ओके। सो अभी यहाँ पे ये दोनों एक ही कंसिडर किए बोले तो कितने पार्ट्स हो गए, B1 C2 E और D 3 और आर्म 4, सो टोटल 4 सब कॉलम हो गए। सो इन रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स you have to make 4 sub columns, 1 2 3 4। so in the first sub column you have to write arm, which will represent the speed of arm A। so in the next column आर्म के बाद कौन सा गियर लिखना है बोले तो यहाँ पे आपको डायग्राम रेफर करना है। तो यहाँ पे ये डायग्राम में अगर इंटरनल गियर नहीं है, मतलब इंटरनल मेशिंग नहीं है, तो पहले सबसे छोटा गियर आपको कंसिडर करना, आर्म के बाद सबसे छोटा गियर लिखना होगा सब कॉलम्स में। और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर गियर ट्रेन में इंटरनल गियर नहीं है, इंटरनल मेशिंग नहीं है, तो आर्म के बाद सबसे छोटा गियर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे छोटा गियर आप नंबर ऑफ टीथ देखेंगे सभी के, तो सबसे छोटा गियर जो है नी सी है। आप देखो इसका बी का 75 है, डी का 90 है और ई का 45 है और सी का कितना है 30 है। तो सबसे छोटा गियर हुआ सी। तो आर्म के बाद छोटा गियर लिखना है। क्यों बोले तो ये गियर ट्रेन के अंदर इंटरनल गियर नहीं है, इंटरनल मेशिंग नहीं है, तो यहाँ पे गियर सी लिखो। अभी देखो गियर सी के बाद नेक्स्ट गियर कौन सा आता, आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपको गियर सी जो है ने किसके साथ मैच हो रहा है, वो गियर जो है ने नेक्स्ट कॉलम में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो गियर सी जो है ने गियर डी के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे गियर सी जो है ने गियर डी के साथ मैश हो रहा है, वो गियर लिखना है। मगर गियर डी और ई कंपाउंड गियर्स है, दोनों गियर्स को है नी हमको एक ही कॉलम में लिखना होगा। और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, गियर सी जो है नी गियर डी के साथ मैश हो रहा है यहाँ पे, मगर गियर डी और गियर ई कंपाउंड गियर्स है, मतलब दोनों गियर्स को एक ही कॉलम में लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं दोनों गियर्स को एक ही कॉलम में लिखा हूँ, कंपाउंड गियर डी ई। और ये जो कॉलम है ना गियर डी और ई का दोनों गियर का स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट के कॉलम में जो है नहीं कौन सा गियर लिखना है बोले तो आपको और देखना पड़ेगा। गियर सी डी के साथ मैच हुआ, ये दोनों गियर लिखे, गियर डी लिखे और गियर ई भी लिखे एक ही कॉलम में। अभी गियर ई किसके साथ मैच हो रहा है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो गियर ई किसके साथ मैच हो रहा है, बी के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे गियर ई बी के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, तो गियर बी नेक्स्ट कॉलम में लिखना होगा। यहाँ पे गियर बी नेक्स्ट कॉलम में लिखे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा आपको सब कुछ। यहाँ पे देखो मैं और एक बार एक्सप्लेन करूँगा आपको। पहले कॉलम सब कॉलम में आर्म लिखोगे, नेक्स्ट आर्म के बाद सबसे छोटा गियर लिखोगे। क्यों बोले तो यहाँ पे इंटरनल गियर नहीं है गियर ट्रेन में। नेक्स्ट यहाँ पे गियर सी के बाद जो है नहीं गियर सी किसके साथ मैच हो रहा है उसको लिखना है। यहाँ पे देखो गियर सी जो है नहीं गियर सी जो है नहीं गियर डी के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे गियर डी के साथ मैच हो रहा है यहाँ पे, सो वो गियर लिखना है। मगर गियर डी और ई कंपाउंड गियर्स है, तो दोनों गियर्स को हमको एक ही कॉलम में लिखना है। तो दोनों गियर्स है नहीं यहाँ पे एक ही कॉलम में लिखे हुए हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी ये कंपाउंड गियर किसके साथ मैच हो रहा नहीं उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। कंपाउंड गियर देखो, कंपाउंड गियर में दो गियर है डी और ई। डी किसके साथ मैच हो रहा है, सी के साथ मैच हो रहा है, वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं आप। ये कंपाउंड गियर में दो गियर है, ये कंपाउंड गियर किसके साथ मैच हो रहा है उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। मगर यहाँ पे देखो गियर डी सी के साथ मैच हो रहा है, गियर डी गियर सी के साथ मैच हो रहा है यहाँ पे। इसको ऑलरेडी आप यहाँ पे लिख चुके हैं ये कॉलम में, तो इसका काम खत्म हुआ। नेक्स्ट गियर ई ये किसके साथ मैच हो रहा है नहीं उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। यहाँ पे देखो गियर ई
बी के साथ मैच हो रहा है, बी के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, तो गियर बी नेक्स्ट कॉलम में लिखना है आपको, गियर बी यहाँ पे आप लिखिए। ठीक है, ये जो कॉलम्स है नहीं उसके वो गियर के स्पीड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, कंडीशन लिखना है, 3 कंडीशन। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमेशा आप जैसे लिखते आए कंडीशन वैसे ही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। आर्म है, यहाँ पे आर्म इज फिक्स करके लिखना है, मतलब इसको स्पीड 0 देना है। नेक्स्ट आर्म के बाद कौन सा गियर है, गियर सी, गियर सी को है ना +1 रेवोल्यूशन मोशन देना है, यहाँ पे लिखा हूँ। कंडीशन कैसे लिखना है, आर्म जो है नी उस आर्म को फिक्स्ड बनाना है। नेक्स्ट आर्म के बाद कौन सा गियर है, गियर सी है, तो इसको +1 रेवोल्यूशन देना है, तो वही यहाँ पे लिखा हूँ, आर्म इज फिक्स्ड एंड गियर सी मेक्स +1 रेवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे आर्म के बाद जो गियर रहता है ना तो उसको हम +1 रेवोल्यूशन मोशन देते हैं। अगर यहाँ पे आर्म के बाद गियर बी है तो यहाँ पे गियर बी मेक्स +1 रेवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करके लिखना है। ठीक है, आर्म के बाद जो भी गियर रहता है ना उसको +1 रेवोल्यूशन मोशन देना है, तो ये कंडीशन होगा फर्स्ट कंडीशन। और ये कंडीशन जो आप लिख रहे हैं या ये टोटल जो टैबुलर कॉलम जो बना रहे हैं ये जो है नी आपको गिवन डेटा के साथ कंपेयर नहीं करना है, यहाँ पे गिवन डेटा कुछ भी कंसिडर नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, और ये अभी ये कंडीशन के हिसाब से आपको ये कॉलम्स आपको फिल करना है। तो ये फर्स्ट देखो, आर्म इज फिक्स, मैं पहले आर्म का भरूंगा यहाँ पे, वो कैसे भरना है, आर्म इज फिक्स्ड, आर्म इज फिक्स बोले तो उसका स्पीड क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे 0 लिख दो। नेक्स्ट सी का, गियर सी का लिखना है, गियर सी मेक्स +1 रेवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम लिखे हैं गियर सी मेक्स +1 रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे +1 लिख दो। ओके, नेक्स्ट जो है नी कंपाउंड गियर है, कंपाउंड गियर DE है, तो इसका स्पीड यहाँ पे कंडीशन में तो मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसका स्पीड फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे लॉजिक यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड गियर में 2 गियर है, गियर D और E है, तो यहाँ पे गियर D है नी गियर C के साथ मैच हो रहा है, और गियर E है नी गियर B के साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक हम कैसे यूज़ करते हैं, ये जो गियर है नी यहाँ पे जो गियर का आप स्पीड लिखते रहते नहीं वो किसके साथ मैच हो रहा है उसके नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जिसका आप स्पीड लिख रहे हैं उसके नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे कंपाउंड गियर है, कंपाउंड गियर मतलब 2 गियर्स हैं, तो यहाँ पे हमें कौन सा गियर कंसिडर करना है ये इसका स्पीड लिखने के लिए। यहाँ पे देखो प्रीवियस कॉलम में आप कौन सा गियर लिखे हैं, गियर सी लिखे हैं। ठीक है, ये गियर सी कौन से कंपाउंड गियर के साथ मैच हो रहा है उसको देखो, गियर सी जो है नी गियर D के साथ मैच हो रहा है, तो अभी ये कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए है नी आप कंपाउंड गियर में गियर D कंसिडर करो, मतलब अभी यहाँ पे आप क्या कंसिडर करो, गियर D किसके साथ मैच हो रहा है वो उसको देख के आप यहाँ पे ये कंपाउंड गियर का स्पीड लिखो। समझ रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन हियर। यहाँ पे देखो गियर B का गियर कंपाउंड गियर DE का स्पीड लिखने के लिए जो है नी हम यूजुअली क्या करते हैं, यहाँ पे जो गियर रहता है कॉलम में जो गियर रहता है तो वो किसके साथ मैच हो रहा है उसके नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जिसका आप स्पीड लिख रहे हैं उसके नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखते थे। मगर यहाँ पे 2 गियर्स है तो किसके नंबर ऑफ टीथ लिखना है, D का लिखना है कि T का लिखना है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, प्रीवियस कॉलम में क्या लिखे, कौन सा गियर लिखे हैं उसको देखो, प्रीवियस कॉलम में C लिखे हैं और C किसके साथ मैच हो रहा है वो देखो, C यहाँ पे देखो गियर C जो है नी D के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे गियर C जो है नी गियर D के साथ मैच हो रहा है यहाँ पे। तो अभी क्या करो, कंपाउंड गियर का स्पीड लिखने के लिए यही 2 गियर कंसिडर करो, C और D मैच हो रहे हैं करके कंसिडर करो। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, अभी देखो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, गियर C, ये गियर C है, ओके, गियर D के साथ मैच हो रहा करके सिर्फ 2 ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये गियर C, ये गियर D, तो यहाँ पे आप कैसे यही 2 मैच हो रहा करके कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंपाउंड गियर का स्पीड कैसे लिखते हैं बोले तो नंबर ऑफ टीथ ऑफ, मतलब ये 2 मैच कर रहे हैं तो आप गियर D का स्पीड लिख रहे हैं अभी आप, तो ये गियर D किसके साथ मैच हो रहा है, C के साथ मैच हो रहा है, तो उसके नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो ऊपर डिवाइडेड बाय
आप कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं, गियर डी का स्पीड लिख रहे हैं, तो उसके नंबर ऑफ टीथ डिनोमिनेटर में लिखो नीचे, ठीक है। अब इनटू गियर सी का जो है नी मैग्नीट्यूड लिखो। यहाँ पे देखो गियर सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ये साइन छोड़ के जो भी रहता नहीं वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, 1 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अभी देखो साइन प्लस आना या माइनस आना इसका। यहाँ पे देखो गियर सी को आप प्लस साइन लिए, ठीक है। गियर सी को आप प्लस साइन लिए, मतलब गियर सी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो अब गियर सी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो गियर डी क्लॉकवाइज में घूमेगा, बिकॉज गियर सी और गियर डी आर एक्सटर्नल गियर्स हैं, दोनों एक्सटर्नल गियर्स हैं, इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। अभी गियर डी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में होगा तो क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हम क्या कंसिडर करते हैं, माइनस। तो यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। इतना लिखने के बाद जो है ना, अभी देखो नेक्स्ट कॉलम में क्या है, गियर बी है। तो गियर बी का स्पीड कैसे लिखते हैं बोले तो, गियर बी किसके साथ मैच हो रहा है उसको देखना है। गियर बी देखो यहाँ पे गियर बी जो है नी ई के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे गियर बी ई के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये दोनों गियर को कंसिडर करके हम स्पीड लिखना है। तो आप कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं और डायग्राम निकालता हूँ। ये समझो गियर बी है, ये गियर ई है, ठीक है। यहाँ पे आप कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं, यहाँ पे आप गियर बी का स्पीड लिखना है। तो गियर बी का स्पीड लिखना है बोले तो गियर बी किसके साथ मैच हो रहा है, अभी आप गियर बी का स्पीड लिख रहे हैं, गियर बी का स्पीड आपको लिखना है। तो यहाँ पे गियर बी किसके साथ मैच हो रहा है, ई के साथ मैच हो रहा है। तो गियर नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ई उसको न्यूमरेटर में निकले ऊपर, डिवाइडेड बाय गियर बी का लिख रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ टीथ नीचे लिखना है, ठीक है। इनटू गियर ई का जो मैग्नीट्यूड है नी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। ये गियर ई का कॉलम यही है, गियर डी और गियर ई दोनों का कॉलम एक ही रहेगा और दोनों का स्पीड भी एक ही रहेगा, ठीक है। तो गियर ई का मैग्नीट्यूड बोले तो ये माइनस साइन छोड़ के जो भी रहता नहीं उसको मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का। ये माइनस साइन छोड़ के जो भी यहाँ पे है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मतलब गियर बी जिसके साथ मैश हो रहा है नहीं उसका मैग्नीट्यूड है नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। गियर बी ई के साथ मैश हो रहा है तो गियर ई का मैग्नीट्यूड जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। गियर ई का मैग्नीट्यूड जो है ना ये है टी सी बाई टी डी इंटू 1, तो टी सी बाई टी डी इंटू 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैं, समझ रहे हैं। अभी देखो अभी गियर बी ई के साथ मैश हो रहा है, ठीक है। गियर ई का डायरेक्शन क्या है, गियर ई का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ही रहेगा। क्यों बोले तो गियर डी और गियर ई एक ही शाफ्ट पे माउंटेड हैं, बोले तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। गियर ई का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो गियर बी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। क्यों बोले तो ये दोनों एक्सटर्नल गियर्स हैं और एक्सटर्नल मैशिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गियर ई का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो गियर बी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम प्लस करके कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो यही सब मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ये कॉलम यहाँ पे देखो टी ई बाई टी बी इंटू टी सी बाई टी डी इंटू 1 इंटू टी सी बाई टी डी इंटू 1। यहाँ पे देखो माइनस साइन नहीं ले, प्लस ही ले, यहाँ पे भी प्लस ही है, ओके। सो ये होगा फर्स्ट कंडीशन का। सो वंस यू राइट द फर्स्ट कंडीशन करेक्टली then you can easily write the remaining conditions very easily, okay. So here second condition is instead of +1 you have to take +x, मतलब जहाँ पे +1 है वहाँ पे आपको +x लेना है। तो ये कॉलम में भी आपको ये कॉलम ये जो रो में है ना जहाँ पे 1 करके वहाँ पे x करके सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म। यहाँ पे ज़्यादा आप टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे देखो 0 है तो 0 रख दो, जहाँ पे +1 है तो यहाँ पे +x लो। तो यहाँ पे माइनस टी सी बाई टी डी है इंटू 1 है तो माइनस टी सी बाई टी डी इंटू 1 के बदले में x, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है
टी बाई टी भी है, यहाँ पे टी बाई टी है, टी सी बाई टी डी इंटू 1 है, यहाँ पे टी सी बाई टी डी इंटू एक्स। तो ये हुआ सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन जो है, आपको प्लस वाई मोशन सभी कॉलम में ऐड करना है, प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। ठीक है, तो अभी लास्ट स्टेप जो है, आपको ये सेकेंड रो और थर्ड रो, मतलब सेकेंड कंडीशन थर्ड कंडीशन को आपको ऐड करके ये लास्ट कॉलम में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एन ए करके लिया हुआ है, एन ए, ये कॉलम जो है स्पीड आर्म ए का स्पीड का रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 प्लस वाई तो प्लस वाई हुआ, दैट इज इक्वल टू एन ए। ओके, यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, और ये जो कॉलम है ना गियर सी का रिप्रेजेंट करेगा स्पीड। ओके, नेक्स्ट ये जो कॉलम है ये यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है इस दिस प्लस दिस करना है, माइनस टी सी बाई टी डी इंटू एक्स दिस वन प्लस वाई यहाँ पे। ये जो कॉलम है ना गियर डी और गियर ई दोनों का स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर आपको गियर डी का स्पीड ऑफ गियर डी भी यही रहेगा, स्पीड ऑफ गियर ई भी यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो है ना दिस प्लस दिस यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, दिस कॉलम विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ गियर बी। ओके, ये जो ये यहाँ पे नोट जो है नी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लो, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये जो नोट करके मैं लिखा हुआ हूँ यहाँ पे नोट्स में, तो ये टैबलर कॉलम बनाते जब लॉजिक को कैसे यूज़ करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट्स में पढ़ लो, आपको समझ में आएगा। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट जो है ना फ्रॉम टैबुलर कॉलम से आपको जो भी इक्वेशन मिले हुए हैं तो एक साइड में लिख लो। यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशंस एन ए एन सी एन डी और एन ई एन बी, ये सब इक्वेशंस जो है ना यहाँ पे आप लिख लो। यहाँ पे आप लिख ले फ्रॉम टैबुलर कॉलम करके एन ए और एन आर इज इक्वल टू प्लस वाई। यहाँ पे देखो एन ए इज इक्वल टू प्लस वाई, यहाँ पे देखो एन ए इज इक्वल टू प्लस वाई है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है एन ए इज इक्वल टू प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ पे देखो टैबुलर कॉलम से आपको एन सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है एन सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सिमिलरली एन डी और एन डी ई यहाँ पे डैश है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नहीं तो आप एन डी बार एन ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये वाला थर्ड वन यानी डी बार यानी ई। ओके, ये लास्ट इक्वेशन है, ये लिखा हुआ यानी बी इज इक्वल टू टी बाई टी बी इंटू टी सी बाई टी डी इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ यानी बी इज इक्वल टू, मगर यहाँ पे इसको टोटल ब्रैकेट डालो, मतलब ये टोटल प्लस वाई, ये प्लस वाई अलग है। ओके, सो इन सबको मैं इक्वेशन नंबर्स दिया हूँ, ये इक्वेशन 1 2 3 4। ओके, नो अभी देखो आप गिवन, अभी ये जो इक्वेशंस आपको टैबुलर कॉलम से मिले हैं गिवन डेटा के साथ कंपेयर करो। यहाँ पे देखो एन आर्म गिवन में क्या दिया है, -100 RPM करके दिया हुआ है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको गिवन में, यहाँ पे आप गिवन में लिखे थे एन आर्म और एन ए इज इक्वल टू -100 RPM, वही यहाँ पे लिखा हुआ है एन आर्म। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये इक्वेशन टैबुलर कॉलम के इक्वेशन में एन आर्म इज इक्वल टू प्लस वाई है, और गिवन में क्या है एन आर्म इज इक्वल टू -100 RPM है। तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को इक्वेट कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे दोनों के LHS सेम है तो RHS भी इक्वल रह सकते हैं। तो उसके हिसाब से y इज इक्वल टू -100 RPM करके लिया मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमको स्पीड ऑफ गियर सी का फाइंड करना है। स्पीड ऑफ गियर सी फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करना है। अगर मैं ये इक्वेशन यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मुझे x और y का वैल्यू मालूम करना है, तो इसलिए मैं x और y की वैल्यू पहले फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे y का वैल्यू मालूम हो गया हमको, अभी नेक्स्ट x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, एन बी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो
गिवन में क्या दिया हुआ है, एन बी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हूँ मैं, एन बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ टैबुलर कॉलम से इक्वेशन क्या है, देखो एन बी इज इक्वल टू ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन और ये गिवन ये इक्वेशन को 6 करके लिया हूँ, ये इक्वेशन को 4 करके लिया हूँ। ये दोनों इक्वेशंस मैं इक्वेट कर रहा हूँ, क्यों बोले तो दोनों के LHS सेम है। जब LHS सेम है तो RHS को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो 0 इज इक्वल टू ये 0 इज इक्वल टू दिस वन, दिस 0 इज इक्वल टू दिस वन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे देखो टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, टी बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, टी सी टी डी, एक्स का वैल्यू हमको पता नहीं तो एक्स एज इट इज रखो, वाई का वैल्यू -100 जस्ट नो यू हैव कैलकुलेटेड, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करने के बाद x इक्वल टू 500 मिल जाएगा, प्लस 500, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ गियर सी, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ गियर सी, यानी सी इज इक्वल टू, ये फ्रॉम टैबुलर कॉलम है। ये इक्वेशन कौन सा है, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ गियर सी फाइंड करने के लिए एनसी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये टैबुलर कॉलम से एनसी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन लेके अभी मैं स्पीड और डायरेक्शन ऑफ गियर सी फाइंड कर रहा हूँ। एनसी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू 500 है, वाई का वैल्यू -100 है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे एनसी इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 400 मिलेगा, 400 आरपीएम, प्लस 400 आरपीएम। यहाँ पे देखो प्लस 400 आरपीएम है बोले तो हम प्लस को कौन सा डायरेक्शन करके कंसिडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। प्लस को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करके कंसिडर करते हैं। तो ये हुआ गियर सी का स्पीड और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ गियर सी का। ओके, सो ये हुआ इतना प्रॉब्लम। आप कंपाउंड गियर का भी स्पीड आप फाइंड कर सकते हैं, कंपाउंड गियर का स्पीड भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फार्मूला लेके, ये इक्वेशन लेके। मगर क्वेश्चन में ये इसका कंपाउंड गियर और कंपाउंड गियर का स्पीड और डायरेक्शन पूछा नहीं, सिर्फ ये ऐसे ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम।